Hiren, mute yourself. તમારું હે Good morning, students. I hope I'm clearly audible to you. Okay. So today what we will be doing is I will be playing a small video which is more like revision, right? Revision of the topic that we have already discussed. Students, I'm not able to connect the screen, right? But today we will be discussing uh, the concept that we have already done. Right, so I'm just sharing a small screen about the video, and from that you can have the learning. Okay. Just go through the video and just have a short recap. Okay. Once the screen is visible, please let me know. Can you see the screen? Just unmute yourself and tell me yes. Unmute yourself and tell me yes. Is it visible? Yes. Okay. Yes, ma'am. Can you hear the video? अगर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो आप मुझे बोलना.
Not audible, ma'am.
Yes. You could not listen to any of the thing. That video is over now, right? I'm just taking the discussion forward from here. Am I audible to you all? Right? So what was the learning from that particular video? What difference did you found there? Why don't know? Okay, you could not listen to the sound. Okay, I will be sharing this particular video in the Google Classroom as well. Right, so it was more about a briefing, right? A briefing on what is ordinal and what is cardinal. Right, I just thought एक आधा video अगर आपके पास हो तो it will be very easy for you to see, very easy for you to remember, very easy for you to connect. Right, so there will be some or the other videos which we will be having, right, which we will be having, which we will be discussing. I hope my voice is clearly audible to each of you. आवाज ठीक से आ रही है मेरी आपको? Okay. Right, so let us have a quick recap. Cardinal, ordinal, what we had discussed in the last class. What we have discussed in the last class. राइट, मार्जिनल यूटिलिटी किया था, ऑर्डिनल कार्डिनल में कार्डिनल हमने कंप्लीट पूरा किया था कि इट इज अबाउट सेटिस्फैक्शन गेन्ड थ्रू अ पर्टिकुलर चॉइस विच यू मेक एंड व्हाट यू सेक्रीफाइस. सेकेंड इसका एस्पेक्ट था ऑर्डिनल अप्रोच, जहाँ पे हमने बात करी थी वी रैंक, हम रैंक देते हैं उन सारी चीजों को जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है. Right, so what do? Is we give rank, and based on the difference in the approach, right, हर एक का जो approach अलग है in terms of liking the product, in terms of using the product, based on that क्या issue आता है कि हर एक लोगों का एक different utility develop होता है. So per person utility becomes different, and this creates another approach which is known as indifference cost curve. राइट, सबके कर्व जो होते हैं यूटिलिटी कर्व होते हैं, नॉट कॉस्ट कर्व, इन डिफरेंस कर्व विच इज अबाउट डिफरेंट satisfaction with different people are having from the usage of the same product. Right, so now before we go ahead in detail with what is indifference curve, what we are going to do is we are going to discuss the difference between ordinal and cardinal. ठीक है, is the screen visible?
Okay, right. So I'm going back to the screen. So what is the difference between ordinal and cardinal? Then in detail we will discuss in different cost curve. So पहला difference ये है, right, कि ordinal is about level of satisfaction. हर बार आप उसको count कर सकते हो, right? Cardinal approach says it explains the satisfaction level after consuming goods and services can be scaled in terms of countable number. आप उसको count कर सकते हो, राइट? काउंट करना मतलब सेटिस्फैक्शन कितना हुआ, राइट? जैसे हमने कल बात करी थी, इट्स डिफिकल्ट टू काउंट द नंबर्स. आप काउंट कर सकते हो कितने प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट के सेटिस्फैक्शन कितना है. वेयर इज इन द ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या है, हम प्रेफरेंस अरेंज करते हैं. वी अरेंज कि हाउ मच सेटिस्फैक्शन इज विद प्रोडक्ट ए, हाउ मच सेटिस्फैक्शन इज प्रोडक्ट बी, हाउ मच सेटिस्फैक्शन आई हैड व्हेन आई यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार यूज किया कितना सेटिस्फैक्शन था, दूसरी बार किया व्हाट वाज द सेटिस्फैक्शन. उस तरह से हम जो भी प्रेफरेंसेस है उसको हम कर सकते हैं, अरेंज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर. हाईली सेटिस्फाइड, राइट? जैसे हम रैंकिंग नहीं देते कि कोई भी सेमिनार जब हम अटेंड करते हैं, वी गिव द रैंकिंग हाउ सेटिस्फाइड वी आर. ठीक है, हाउ सेटिस्फाइड वी आर विद द पर्टिकुलर utility of the product or the services or the webinar or the seminar. So we generally say excellent, very good, good, poor. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज प्रेफरेंस जिसको ऑर्डर फॉर्म में दिया है. ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सैम सबमिट्स पिज्जा, gives him 60 utilities of satisfaction whereas burger gives only 40 utils. राइट? सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जैसे हमने कल वो देखा था, यूटिलिटी को कैसे काउंट करोगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स अपॉन द प्राइस. ठीक है, पता है वो वाला चार्ट जिसमें जेमिन ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स अपॉन अपॉन प्राइस ऑफ दैट एक्स, जहां से हमें पता चलता है ये सारी यूटिलिटी. ठीक है, सो दिस इज हाउ कार्डिनल में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसने क्या ज्यादा ऑर्डर किया है. डिड ही ऑर्डर मोर पिज्जा? इफ यस, satisfaction for pizza is higher as compared to satisfaction from burger. ठीक है, वैसे अगर ऑर्डिनल में हमें देखना हो, Sam submits he gets more satisfaction from pizza as compared to burger. राइट? मेजर कैसे करेंगे? राइट, सो जैसे हमने बात करी वहां पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, यूटिल्स फॉर्मूला, जिसपे के बेस पे वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कितना सेटिस्फैक्शन है. ऑर्डिनल में हम रैंक देंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. जिसका रैंक 1 है वो प्रोडक्ट से हम ज्यादा सेटिस्फाइड है, जिसका रैंक लोअर है उससे हम कम सेटिस्फाइड है. ओके, विच इज रियलिस्टिक? कौन सा रियलिस्टिक है? कैन यू गो एवरी टाइम कि आप उसकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करो, फिर उसको प्राइस से डिवाइड करो, एवरी टाइम? क्या ये प्रैक्टिस पॉसिबल है कि आपने हर बार मार्जिनल यूटिलिटी लिया, उसके अपॉन प्राइस को कंसिडर किया, फिर आपने हर बार कैलकुलेट किया, फिर आपको पता चला कि कितनी यूटिलिटी है? सो इट इज लेस रियलिस्टिक. वो कैलकुलेशन करना हर बार वो रियलिस्टिक नहीं है. पर जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की, जहां पे हम रैंक देते हैं, विच इज वेरी सिंपल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियलिस्टिक, राइट? सो वो सेंसिबल भी लगता है. So ordinal method is more sensible, more practical, more in use, whereas cardinal approach is lesser in use. दोनों में से सबसे ज्यादा प्रिफर क्या करते हैं हम? ऑर्डिनल मेथड, जहां पे हम रैंक देते हैं रादर देन गोइंग विद द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन कहाँ पे करते हैं? कार्डिनल अप्रोच में. ठीक है, हु इज द ऑथर? ये आप खास याद रखना. इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. राइट, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है. राइट, की थियोरी, कार्डिनल अप्रोच की थियोरी किसने डेवलप करी? तो इट वाज बाय एल्फ्रेड मार्शल. मार्शल वाज द वन हु प्रोपोगेटेड दिस पर्टिकुलर थियोरी. राइट, सो मार्शल ने कौन सी थियोरी प्रपोज करी थी? थियोरी ऑफ यूटिलिटी
जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने एड्रेस दिया था कार्डिनल अप्रोच का. ओके, सो प्रोफेसर मार्शल, विच थियरी डिड ही केम अप विथ? सो यूटिलिटी एनालिसिस एक थियरी है जो मार्शल ने प्रपोज करी है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी से वेलफेयर थियरी जो है वो भी मार्शल ने प्रपोज की थी. वेलफेयर थियरी एंड यूटिलिटी थियरी, who is the proposer of that theory? Alfred Marshall. So remember this, very important for your MCQ for the terms. Next है J.R. Hicks. राइट, सो ऑर्डिनल थियोरी किसने प्रमोट किया? कौन सी थियोरी में आई मीन किसने प्रपोज किया था इस थियोरी को? तो जॉन आर हिक्स ने. राइट, ऑर्डिनल थियोरी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्रेजेंट किया एक एनालिसिस जिसको हम रेफर करते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, कौन सा एनालिसिस है? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो हु इज द प्रपोजर ऑफ ऑर्डिनल थियोरी? हु इज द प्रपोजर ऑफ इनडिफरेंस कर्व थियोरी? इट इज जॉन हिक्स. राइट, दोनों ऑथर के नाम, उनकी थियोरी याद रखना. राइट, अगर आपको पूछा गया है कौन सी थियोरी ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो विच थियोरी इज मोर प्रैक्टिकल? कार्डिनल और ऑर्डिनल? कार्डिनल और ऑर्डिनल? इट इज ऑर्डिनल थियोरी. राइट, कैलकुलेशन कहाँ पे डिफिकल्ट लग रहे हैं? कार्डिनल अप्रोच में. राइट, कैलकुलेशन करने पड़ते हैं. ऑर्डिनल में इट इज इजी टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द रैंक विच वी गिव. ठीक है, so any doubt in this differences में कोई डाउट है? राइट, सो ये क्लियर है. ठीक है, नाउ वी गो विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व. ठीक है, हम समझते हैं व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व. कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख सकते हो. Right, so now I am explaining what is ordinal and what is indifference cost curve. दूसरी चीज जो मुझे पूछनी है आपसे, राइट, इट इज रैंकिंग कब दे पाओगे? प्रोडक्ट कौन सा टाइप का होना चाहिए कि आप उसको रैंकिंग दे पा रहे हो? व्हाट डज इट मीन व्हेन यू गिव रैंकिंग टू द प्रोडक्ट? किसी भी प्रोडक्ट को जब आप रैंकिंग देते हो उसका मतलब क्या है? उसका क्या मतलब है? एनी आइडिया? When it is possible to give ranks to the product? जब alternative available है, isn't it? Yes, on the basis of satisfaction, on the basis of alternative. अगर कोई alternative ही नहीं है तो फिर आप rank give rank to it. There has to be some comparison. ठीक है, जहां पे comparison हो पाए मीनिंगफुल टू गिव रैंक्स. जहां पे कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे वहां पे हाउ विल यू बी able to give rank?
सो व्हेनेवर वी से कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच है, वहां पे और एक अप्रोच, और एक चीज क्या आएगी, और एक चीज क्या आएगी कि वहां पे हर बार, राइट, वहां पे हर बार आएगा कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन, दैट इज सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कंसेप्ट आएगा. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन. राइट, सो यूटिलिटी कितने टाइप की है? आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. स्क्रीन विजिबल है? यूटिलिटी कितने टाइप की है? दो टाइप की, कार्डिनल ऑर्डिनल. ठीक है, कार्डिनल किसने प्रपोज करी? मार्शल ने. इसलिए इसका दूसरा नाम ये है कि दिस इज नोन एज मार्शल अप्रोच, मार्शलिंग अप्रोच. राइट, ऑर्डिनल थियोरी किसने दी थी? तो वो दी थी हिग्स ने. राइट, सो हिग्स गेव दिस पर्टिकुलर थियोरी, इंडिफरेंस कॉस्ट कर्व की थियोरी ऑर्डिनल अप्रोच से प्रपोज होती है. राइट, सो यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन. डिफरेंट ऑथर की डिफरेंट थियोरी है. यूटिलिटी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव. आपको जिस चीज से यूटिलिटी मिलती है, राइट, वो चीज से मुझे यूटिलिटी ना भी मिले, आपको जो चीजें पसंद है, जिस टाइम पे पसंद है, वो मुझे उस टाइम पे ना भी पसंद हो. राइट, सो इट इज सब्जेक्टिव एंड इट इज रिलेटिव इन नेचर. राइट, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं है. क्यों? बिकॉज हर एक चीज की यूटिलिटी हो, शायद आपके लिए यूजफुल हो भी ना भी हो. से फॉर एग्जाम्पल लिक्योर. राइट, लिक्योर इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज नॉट हेल्दी. ठीक है, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर यू, सिगरेट इज नॉट गुड फॉर यू, बट देर आर पीपल हु गेट मैक्सिमम utility out of this. Means they are very satisfied when they use this products which are actually not good for their health. It is a kind of addiction which is ruining your health, your physical and mental well-being. ठीक है, यूटिलिटी एथिकल अप्रोच के साथ जुड़ी नहीं है. यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, चाहे वो अच्छी चीज से हो या बुरी चीज से हो. सो इन यूटिलिटी वी डोंट हैव एनी अप्रोच जिसको हम बोलते हैं एथिकल अप्रोच. ठीक है, सो सेटिस्फैक्शन डज नॉट मीन इट इज एथिकल. राइट, ये चार फीचर्स आपको क्लियर है? ये हमने आगे डिस्कस नहीं करे थे, सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस फोर फीचर. राइट, आपको जिस चीज से यूटिलिटी है मिलती है, से फॉर एग्जांपल यू फील हैप्पी व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक. I feel happy when I paint. Somebody feels happy when they go for cycling. Somebody feels happy when they eat chocolates. So different people may have different thing which can make them happy. So it is subjective in nature. Same way utility, different people will utilize different product, और हर एक डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ उनकी यूटिलिटी अलग अलग होगी. ठीक है, राइट, सो ये चार फीचर्स. राइट, दिस फाइल आई विल बी अपलोडिंग ऑन गूगल क्लासरूम. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें यूटिलिटी कंसेप्ट की, तो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने कर दिया है. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ये भी हमने किया है. When the number is continuously rising, उसको हम पॉजिटिव यूटिलिटी बोलते हैं. When it is reaching to zero, उसको जीरो यूटिलिटी बोलते हैं. When it is going to -1, -5, -10, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव यूटिलिटी. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव यूटिलिटी. राइट, अजम्पशंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे, डिमिनिशिंग रिटर्न भी हमने कर लिया था. व्हाट वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ इज इंडिफरेंस कॉस्ट कर्व. ठीक है, indifference curve. So what is indifference curve? Single indifference curve shows combination of x and y that yields equal satisfaction to the customer. Now what is this x and y? These are two different types of goods. ठीक है, x and y क्या है? They are two different kinds of goods. Goods
say for example pen and paper, right? Say for example pen and paper, goods X and goods Y. Which is the nature of this good? Pen और paper कैसे goods हैं? पेन और पेपर कौन सी गुड है? कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है? They are complementary goods, right? So you will need both, but what will be the combination, right? So whenever we come up with combination of any goods, right? जैसे tea and biscuits, combination. Tea and biscuit, this is combination, two products. These two products are substitute or complementary, again more complementary in nature. Okay, say for example cold drink and burger, again complementary in nature. So या तो वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की होगी या वो होगी सब्सटीट्यूट नेचर की. पेंसिल और पेन, नोटबुक और डायरी, सब्सटीट्यूट, राइट? एक्टिवा और से फॉर एग्जांपल टीवीएस स्कूटर, सब्सटीट्यूट. ठीक है, आइदर इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री और इट विल बी सब्सटीट्यूट. सो वी आर फाइंडिंग कि कौन से कॉम्बिनेशन से कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट? सो टू एक्सप्लेन दैट, let us understand what is the indifference cost curve and what are the assumptions. पहला assumption, consumer is rational, जो हमने आगे भी किया था. consumer हमेशा rational होता है, सोच समझकर अपने पैसे यूज करता है. जिस चीज से उनको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले उस चीज में वो ज्यादा पैसे डालता है. ठीक है, कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस, मतलब जो भी उनको पसंद है, जो भी उनको लेना है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है. तो कंज्यूमर एक्सप्लेन्स द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड, दिस इज प्रेफर्ड, दिस इज लेस प्रेफर्ड, दिस इज लीस्ट प्रेफर्ड, दिस इज नॉट प्रेफर्ड एट ऑल, राइट? ये मुझे अच्छा लगता है, आई प्रेफर इट, दिस आई डोंट प्रेफर, राइट? दिस आई हैव नेवर प्रेफर्ड. अपनी जो भी प्रेफरेंसेस हैं दे एक्सप्रेसेस इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. मोस्ट प्रेफर्ड, राइट? एवरेज प्रेफर्ड, लीस्ट प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, नॉट प्रेफर्ड एट ऑल. ठीक है, नेक्स्ट है नॉन स्टैटिटी. कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड विद गुड्स इन क्वेश्चन, राइट? कभी भी एक हद से ज्यादा गुड्स आप दे दोगे कंज्यूमर को, consumer will not be ready, he will not be ready to consume it, right? Negative utility start हो जाएगी. So anything which is over served, ज्यादा सर्व कर दिया, जैसे हमने कल लंच बॉक्स की बात करी थी, it will not add to satisfaction. In fact it will be it will be wasted, it will be not utilized, it will go in marginal negative utility. Negative utility मतलब वो यूज नहीं होगा, right? So these are the assumptions of indifference cost curve. ठीक है, now जब भी बात करते हैं कॉस्ट कर्व की, सो अगेन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. जैसे हमने बात करा ए बी, बी सी, ए सी, तीन प्रोडक्ट्स आपके सामने रखिए, ए बी एंड सी. व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? कोई भी दो आप ले सकते हो. ठीक है, so which will be the two which you will prefer? Somebody will prefer AB, somebody will prefer BC, somebody will prefer AC. Three different curves will come in the existence. AB वाले लोग, BC प्रोडक्ट को चूज करने वाले लोग और AC प्रोडक्ट को चूज करने वाले लोग. Say for example it is cold drink. ठीक है, it is cold drink, tea and samosa. तीन प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, टी एंड समोसा. कोल्ड ड्रिंक को हम ए ले लेते हैं, टी को हम बी ले लेते हैं, समोसा को हम सी ले लेते हैं. विच विल बी द कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा सेल होगा? क्या चाय और कोको कोला दोनों साथ में जाएंगे? विच विल बी द कॉम्बिनेशन विच विल वर्क बेस्ट? आइदर इट विल बी ए सी और इट विल बी बी सी, है ना? आइदर ए सी प्रेफर करोगे या बी सी प्रेफर करोगे.
राइट। ठंडी की सीजन में से फॉर एग्जाम्पल आप बीसी ज्यादा प्रेफर करोगे, सेम प्रोडक्ट इफ इट इज ऑफर्ड इन विन समर तो आप कोल्ड ड्रिंक और समोसा दैट इज एसी ज्यादा प्रेफर करोगे. सो योर प्रेफरेंसेस में चेंज, your preferences may change because of the change in situation, change in the timing, isn't it? Right? So डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे हमने एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल, जैसे इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल वाज अबाउट एप्पल एंड बनाना. सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आप एक एप्पल लो 10 ऑरेंज, आप 2 एप्पल लो 7 ऑरेंज, आप 3 एप्पल लो 5 ऑरेंज. अगर आपको एप्पल ज्यादा पसंद है, गो विद ऑप्शन डी, 4 एप्पल 4 ऑरेंजेस, बैलेंस यहाँ पे स्ट्राइक हुआ. सो यू मे बी प्रिफरिंग ए और बी और सी. जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो, मैकडोनल्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है कि नहीं? क्या हर बार आप एक ही कॉम्बिनेशन चूज करते हो? एट टाइम्स यू गो विद कोल्ड ड्रिंक बर्गर, एट टाइम्स यू गो विद चिप्स एंड मैकडोनल्ड्स पफ and cold drink, right? At times you go with the bowl of rice and cold drink, right? And maybe French fries. Different combination you choose because different point of time, different combination आपको satisfy करता है. Is this clear? Combination, right? मैकडोनल्ड्स याद कर लो आप, डिफरेंट कॉम्बोज को याद कर लो आप, राइट? डज इट मेक सेंस? ये ए बी सी डी ये डिफरेंट कॉम्बोज है, कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3, कॉम्बो 4. यहां तक क्लियर है? अजम्पशन एंड द कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीजें क्लियर है? राइट. सो वी स्टॉप हियर फॉर द डे. आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. राइट. सो फॉर नाउ जस्ट पुट अप योर एनरोलमेंट नंबर. आप अपने एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में डाल दो. राइट. डोंट वेट फॉर मी टू कॉल योर अटेंडेंस. आप अपने आप से अपने एनरोलमेंट नंबर डाल दो, ठीक है? थैंक यू.